नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के हरनी तालाब पर बिहारी और यूपी परिवारों की ओर से मनाया गया छठ पूजा का पर्व। व्रतियों की ओर से विधि विधान से की गई छठ की पूजा अर्चना। नए साल के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की ओर से स्नेह मिलन समारोह किया गया आयोजित। शहर के सभी अग्रणी और पदाधिकारी रहे समारोह में उपस्थित। कल 222वीं जलाराम जयंती के मौके पर शहर के जलाराम मंदिर पर तैयारियां हुई तेज। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजराती नए साल की अब शुरुआत हो चुकी है। हर साल गुजराती नए साल पर वडोदरा महानगर पालिका की ओर से पदाधिकारियों के साथ स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। उसी के तहत अब जब नए साल की शुरुआत हो चुकी है, तब लाभ पंचमी के दिन वडोदरा महानगर पालिका की ओर से सभी पदाधिकारियों के लिए स्नेह मिलन समारोह सयाजी बाग पर आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विधायक सीमाबेन मोहिले, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, विपक्ष की नेता अमीबेन रावत, पूर्व विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत कई नगर सेवक और अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित सभी की ओर से एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण वडोदरा महानगरपालिकाना कोर्पोरेशननी चूंटायेली पाक शहरना आगेवानो अने अधिकारीश्रीओ आ सर्वेનું એક સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આની પાછળનો આશય નવા વર્ષે નવીન વિચારો સાથે, નવીન ચેતના સાથે, નવા ઉમંગ સાથે કોર્પોરેશનમાં એક સારો સમન્વય સંધાય, વધુ મજબૂત એકબીજા સાથે સંબંધ થાય। પાછલા વર્ષોની અંદર ક્યાં નાનો મોટો મનમુટાવ થયો હોય એ સૌ ભૂલીને ગળે લાગીને આજના દિવસથી એક નવી શરૂઆત કરીએ અને શહેરના વિકાસની અંદર સૌ પોતપોતાના રીતે અધિકારીશ્રી અધિકારીના રૂપે, ચૂંટાયેલી પાકના રૂપે પોતપોતાનું યોગદાન આપીને શહેરને આપણે ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ લઈ જઈએ એ દિશાની અંદર આગામી દિવસમાં કામ કરવાનું હોય ત્યારે એક સ્નેહ મિલન એક માધ્યમ હોય છે, બેની વચ્ચેનું સેતુનું કામ કરતા હોય છે। અને જ્યારે એકબીજા સાથે અન્ન ગ્રહણ કરવામાં આવે, ભોજન ગ્રહણ કરવામાં આવે, એકબીજાના સાથે વાતચીત કરવામાં આવે, વિચારો મળતા આવે, ત્યાર પછી એક સારો વિકાસ થાય અને એક સારી વાર્તાલાપ થાય એ દિશાની અંદર અમારા સૌનો પ્રયત્ન છે। અને એ જ નિમિત્તે શહેરના હિતમાં કોર્પોરેશનના ચૂંટાયેલી પાક, વહીવટી પાક વચ્ચેના સમન્વયના રીતના આ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમનું આજના આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। શહેરના સાંસદ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સૌ ચૂંટાયેલી પાકના પદાધિકારી, સૌ અધિકારી, કમિશનરશ્રી સહિત એમની સમગ્ર ટીમ આની અંદર ભાગ લીધો છે અને સૌ આગામી દિવસમાં શહેરમાં સારો વિકાસ થાય એના માટે કટિબદ્ધ છે। આજે લાભ પાંચમનો દિવસ છે। આજથી બધા જ લોકો પોતાના રૂટીન જીવનમાં આવી જતા હોય છે। લાભ પાંચમના દિવસે ફરીથી આવનારા વર્ષ માટેની શુભ શરૂઆત આજથી કરતા હોય છે। વડોદરા મહાનગર સેવા સદન દ્વારા દર વર્ષે પરંપરાગત રીતે મેયરશ્રીની અધ્યક્ષતામાં પૂર્વ મેયરો, પૂર્વ ચેરમેન, પૂર્વ હોદ્દેદારો સાથે કોર્પોરેશનની ટીમ, કોર્પોરેટરો, સૌ ધારાસભ્યશ્રી બધા જ ભેગા થઈ અને સ્નેહ મિલન સંમેલનનો કાર્યક્રમ યોજતા હોય છે। જે રીતે આપણે દિવાળીના એટલે કે નવા વર્ષના દિવસે લોકોના ઘરે જઈએ, આપણા પરિવારજનને ત્યાં જઈએ અને આશીર્વાદ લેતા હોઈએ છીએ, શુભેચ્છા લેતા હોઈએ છીએ, તેવી જ રીતે કોર્પોરેશન પણ આ શુભ શરૂઆત બધા જ મિત્રો ભેગા થાય, અધિકારી અને પદાધિકારી ભેગા થઈ અને નૂતન વર્ષ અભિનંદન અને સાથે સાથે આવનારા વર્ષની શુભેચ્છા પણ પાઠવતા હોય છે। વડોદરાના માન્ય મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી અને એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા પાઠવું છું। આવનારું વર્ષ વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા સુવિધાસભર લોકો માટેનું એક કાર્ય થાય એવી પણ આજના દિવસે શુભેચ્છા પાઠવું છું। जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल की ओर से आज वडोदरा शहर के गोत्री इलाके में मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप के तहत आम जनता तक
लीगल सर्विसेज की सभी ज़रूरी बातें पहुंचाने का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय कानूनी सेवा सत्ता मंडल दिल्ली की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग स्वरूप 8 नवंबर से 14 नवंबर तक का लीगल सर्विस वीक मनाया जा रहा है। उसी के तहत 2 अक्टूबर से भारत भर में पैन इंडिया अवेयरनेस और आउटरीच प्रोग्राम के तहत कानूनी सेवा सत्ता मंडल की कामगिरी से आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में आज वडोदरा शहर में जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल की ओर से मेगा लीगल सर्विसेज कैंप का आयोजन गोत्री इलाके में मौजूद गायत्री विद्यालय पर किया गया था। वहां पर गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश समेत कई वकील और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही और इस कैंप के तहत नाट्य प्रदर्शन के जरिए आम जनता तक निःशुल्क कानूनी सेवा सत्ता मंडल की जानकारी पहुंचाई गई। बढ़िया बढ़िया, आप मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, मेरे घर पे आए थे ना, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो सिखा दूंगा। जब अरे प्रथम, हेलो अंकल, कैसे हो बेटा? ठीक हो अंकल? क्या बात है तुम्हारी? बोला था मैथ सिखा देंगे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, आओ आओ बैठो। रामाणी मिस्त्री रविभाई चौहान देवांशी वणकर ईशानी प्रकाश। तुम्हारे अभी तो मैच का फेल हो गए तुम दोबारा से? और तुम्हें मैच पड़ा तुम घर पे भी नहीं आ रही? જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ પાલક માતા પિતા તરીકે અમે લોકો એમનું છોકરીની સહાય કરી છે, આ લોકોએ અમને સહાય આપી છે। આ મારા ભાઈની બેબી છે કમલેશભાઈ જસુભાઈ વાઘેલા અને એના પાલક પિતા તરીકે સંજયભાઈ જસુભાઈ વાઘેલા છું। હું એના મોટા પપ્પા થઉં છું। મોટી મમ્મી થઉં છું। સોરી 3,000ની સહાય એમના લોકોને મળી છે। વિશાલ ગઢવી, હું જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ સેક્રેટરી છું। આજ રોજ મેગા લીગલ સર્વિસ કેમ્પનું આયોજન જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ દ્વારા નેશનલ લીગલ સર્વિસીસ ઓથોરિટી ન્યૂ દિલ્હીની અનુસરામાં અને રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના માર્ગદર્શન નીચે કરવામાં આવેલ છે। આ કેમ્પની અંદર વહીવટીતંત્રના વિવિધ કચેરીઓના સહકારથી એક જ સ્થળેથી લોકોને વિવિધ સ્કીમનો લાભ મળી રહે તે માટે જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ કે જે લોકોનો અધિકાર છે એ અધિકાર એમને વિનામૂલ્યે એમના જ વિસ્તારની અંદર તાત્કાલિક મળે એ અમારા પ્રયત્નના ભાગરૂપે આજનો આ કેમ્પ કરેલ છે। આજના કેમ્પની અંદર નામદાર હાઈકોર્ટ લોર્ડશિપ શ્રી એવાય કોગજે સાહેબની અધ્યક્ષતામાં એ ઉપસ્થિત રહેલ હતા અને સતત માર્ગદર્શન અમને પ્રિન્સિપલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ અને ચેરમેન જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ મેંગડે સાહેબનું મળતું રહ્યું છે અને આજે અમે અહીંયા આગળ ઓછામાં ઓછા 2 થી 3,000 લોકોને ત્વરિત લાભ વિવિધ યોજનાઓ જેવી કે આધાર કાર્ડ, આયુષ્યમાન કાર્ડ, આવકનો દાખલો, વહાલી દીકરી યોજના, પાલક માતા પિતા યોજના અને અમારી જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળની જે કામગીરી છે તે વિશે અમે એમને વાકેફ કરીશું। संत शिरोमणि जलाराम बापा की कल 222वीं जन्म जयंती है। उनका जन्म वीरपुर में हुआ था और कार्तिक माह में संत शिरोमणि जलाराम बापा का जन्म हुआ था, जिसके चलते कल उनकी 222वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। ऐसे में शहर के मंदिरों में जलाराम बापा की जन्म जयंती के मौके पर काफ़ी सजावट देखने मिल रही है। कारेलीबाग इलाके में मौजूद जलाराम बापा मंदिर में भी पंडितों की ओर से सभी तैयारियां जलाराम जयंती को लेकर शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी इंतजामात कर दिए गए हैं, जिससे कि भक्तों को दर्शन में कोई दिक्कत ना हो। राम नाम में लीन है, देखत समय राम, ताके पद वंदन करूँ, जय जय श्री जलाराम। आवती काले परम पूज्य श्री जलाराम बापा ने 222મી जन्म जयंती होवाथी आवती काले पब्लिक ने तकलीफ ना पड़े ए बाजू 2 स्कीम गोठववाना आव्या छे। पब्लिक ने शांति दर्शन थाय एवी रीते सरकारनी गाइडलाइन प्रमाणे अमे आयोजन करेलुं छे। पहले आ प्रसादનું આયોજન રાખેલું નથી, મહાપ્રસાદનું આયોજન રાખેલું નથી અને દરેકને બુંદી ગાંઠિયાનું પ્રસાદનું આયોજન કરેલું છે અને પબ્લિકને તકલીફ ના પડે, દરેકને શાંતિ દર્શન થાય એવું આયોજન કરેલું છે। પબ્લિકને એવું કે કાલે બાપાની 222મી જન્મ જયંતિ હોવાથી બધાને શાંતિથી દર્શન થાય, ભાઈ 2 વર્ષથી જે પબ્લિક અટવેલી છે એને શાંતિથી દર્શન થાય એવું અમે આયોજન કરેલું છે। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में एक परिपत्र दिया गया है, जिसके मुताबिक राज्य सरकार की जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें अब राज्य सरकार की ओर से ही फैसले लिए जाएंगे।
हालांकि सरकार के इस परिपत्र के सामने कांग्रेस की ओर से जबरदस्त विरोध जताया जा रहा है। दरअसल राजकोट में कांग्रेस के अग्रणी राजदीप सिंह जाडेजा की ओर से इस मामले में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया है। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर राज्य सरकार यूनिवर्सिटी के लिए सारे फैसले लेगी तो फिर कुलपति सिर्फ नाम के ही रह जाएंगे। इसलिए अगर ऐसा है तो फिर कुलपति उपकुलपति को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टीना शासननी अंदर समग्र गुजरातनी अंदर शिक्षण 20-25 वर्षमां कतડીને हाव पतारीए पड्યું છે, मरण पतारी। त्यारे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी नहीं पण समग्र गुजरातनी तमाम यूनिवर्सिटी माटे एक काले भारतीय जनता पार्टीनी सरकारे जेम चोर घरमां आवीने अंधारामां चोरी करे एवी रीते काले एक परिपत्र कर्यो छे। ए पण ईमेल द्वारा मोकलवामां आव्यो छे समग्र यूनिवर्सिटी। ए परिपत्रनी अंदर जे ते यूनिवर्सिटीने जे पोतानो एक्ट विधानसभानी अंदर पसार थया होय अने स्वायत्त संस्था तरीके ए चालती होय एना उपर मोटी तराप मारवा माटेनो आ एक परिपत्र छे। खास करीने जोवा जाईए तो कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटीनी अंदर अत्यारे वाइस चांसलर अने प्रो वाइस चांसलरना हाथनी अंदर एक पण जग्याए जे नाना मोटा प्रश्नोनी अंदर पोते वीटो पावर एक्ट मुजब जे एक्ट बधी यूनिवर्सिटीमां अलग अलग होय छे। जेम के सौराष्ट्र यूनिवर्सिटीनी अंदर आपणे सेनेटनुं इलेक्शन जोवा जाए तो रजिस्टर सेनेट थतुं होय छे। गुजरात यूनिवर्सिटी में जोवा जाओ तो रनिंग विद्यार्थीओ छे ए पण सेनेटनी चूंटणी लड़ी सके, जे आपणे अहींया लड़ी शकाती नथी कारण के बे एक्ट अलग अलग छे। एवी ज रीते भारतीय जनता पार्टीए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटीमांथी जूनागढ़ यूनिवर्सिटी अलग करी, एनो एक्ट हाव जुदो बनाव्यो छे के एनी अंदर एक पण प्रकारनुं इलेक्शन लड़ी शकाय नहीं। एटले क्यांक ने क्यांक स्वायत्त जे बॉडी छे एना उपर तराप मारवानुं काम भारतीय जनता पार्टीनी सरकारे आ परिपत्र द्वारा कर्युं छे। वाइस चांसलर अने प्रो वाइस चांसलरना कोईपण धाराधोरण मुजब ए पोते वीटो पावर वापरी नहीं सकता। सरकारनी साथे चर्चा करीने पछी ज आगळ वधी शके छे। एटले एक विरोध पक्ष तरीके अने एक सेनेट मेम्बर तरीके भारतीय जनता पार्टीनी सरकारने मारी खुल्ली चेलेन्ज छे, जो तमारे परिपत्र करवो होय तो जेम एक विधानसभामांथी पसार थाय छे ए ज रीते तमारे आ परिपत्रने विधानसभामां लई जवो जोईए अने विधानसभामांथी कायदो बनावीने समग्र यूनिवर्सिटीना एक्टमां सामेल करवो जोईए। अने भारतीय जनता पार्टीना क्यांक संघना वाइस चांसलरो छे, क्यांक उपकुलपतिओ पण संघ हारे जोड़ायेला छे, क्यांक भारतीय जनता पार्टी हारे जोड़ायेला छे। सिंडिकेट मेम्बरो छे तो ए पण सत्तामंडळना डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टीए मूकेला छे, कोई कोंग्रेसना मित्रो आमां नथी। तो जो एमने पोताना ज लोकोने मूकेला छे एमनी उपर विश्वास न होय तो तात्कालिक समग्र गुजरात यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी, एसपी आणंद यूनिवर्सिटी जेटली ग्रांटेबल यूनिवर्सिटीओ छे ए बधा यूनिवर्सिटीना तात्कालिक वीसी पीवीसीना राजीनामा लईने आ परिपत्रने विधानसभामां पसार करीने आईपीएस केडरना लोकोने मूकी देवा जोईए जो एमने शिक्षण सुधारवुं होय तो। आ तो मात्र ने मात्र स्वायत्त जे बॉडी छे एना उपर कंट्रोल रहे एना माटेनो परिपत्र लागे। जबकि इस मामले में राज्य सरकार का जो फैसला है उसे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के कुलपति की ओर से सराहा जा रहा है। राज्य सरकारे दरेक यूनिवर्सिटीना कुलपतिने संबोधीने शिक्षण विभागना एक परिपत्र ने लईने आजे रजूआत अर्थे आवेला अने ए रजूआतमां एमणे जे वात मूकी छे ए वातनी संदर्भे हूँ आप सौने जणावुं आपना माध्यमथी तो आ परिपत्रमां बहु स्पष्टतापूर्वकनी वात छे के यूनिवर्सिटीए सदर सत्तामंडळ, सेनेट, सिंडिकेट वगैरेनी निमणूक करवानी थती होय के संबंधित करार आधारित अध्यापकोनी निमणूक करवानी होय के क्यांय कोई जग्याए आर्थिक रीते यूनिवर्सिटी खर्च करवा जई रही होय त्यारे यूनिवर्सिटीए गुजरात राज्यना शिक्षण विभाग साथे परामर्शन करी ए जरूरी छे एवं बताव्युं छे। क्यांय ए प्रकारे नथी अमने आदेश के नथी प्रकारनी सूचना एटले परामर्शन करवा सारूं, मार्गदर्शन करवा सारूं आ परिपत्र करेलो छे। साहेब अनेक कौभांडो વાત આવ્યા હતા તેની વાત હતી, ભરતી કૌભાંડ હતું, ભ્રષ્ટાચારની વાતો હતી, તમામ વાતને ધ્યાને રાખી અને સરકારમાં જે રજૂઆતો થઈ હતી તેને લઈને પણ આ પરિપત્ર આપ્યો છે।
આ વાત સાથે હું સંમત એટલે નથી કે આ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીને એકને જ પરિપત્ર કરેલ નથી. ક્યાંક સમાચાર માધ્યમથી આ વાતને અલગ રીતે પ્રગટ થયેલી છે. ત્યારે હું બહુ સ્પષ્ટ કહું કે ક્યાંય સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી માટેનો આ પરિપત્ર નથી. રાજ્યની તમામ કન્વેન્શનલ યુનિવર્સિટી એટલે રાજ્ય સરકાર હસ્તકની યુનિવર્સિટી છે એના માટેનો પરિપત્ર છે. અનેક યુનિવર્સિટીના આ પ્રકારના પ્રશ્નો હોય અને પ્રશ્નના સંદર્ભમાં વિનિયમિત કરવા માટે યોગ્ય રીતે આ કાર્યવાહી કરવા હેતુસર આ પરિપત્ર કરેલો છે. कानूनी सेवा सत्ता मंडल के कार्य क्या है, इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए गुजरात राज्य भर में इस वक्त लीगल सर्विसेज कैंप का आयोजन हो रहा है। उसी के तहत राजपीपला में भी जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल और राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से महिलाओं के लिए लीगल सर्विसेज कैंप का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी महिलाओं तक लीगल सर्विसेज कैंप के तहत कानूनी सेवा सत्ता मंडल किस तरह कार्य करता है और उसमें महिलाओं के हक और फ़र्ज़ क्या है, इस बारे में जानकारी मुहैया करवाई गई। इस मौके पर राजपीपला के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और इस कैंप के तहत राजपीपला की सभी महिलाओं तक ज़रूरी जानकारी पहुंचाने का कार्य किया गया। नामदार नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी नालसा न्यू दिल्ली, नामदार सुप्रीम कोर्ट તેમજ ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ અમદાવાદના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ નર્મદા તેમજ નેશનલ કમિશન ફોર વુમન રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગના સંયુક્ત ઉપક્રમે મહિલાઓ અંગેના કાયદા વિશેની કાનૂની શિક્ષણ શિબિર આજ રોજ રાજપીપળા ખાતે યોજવામાં આવેલી હતી, જેમાં ઘણી બહેનોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધેલ હતો। સ્ત્રીઓને લગતા કાયદા વિશે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને તલસ્પર્શી જાણકારી આપેલ હતી। તેમને મફત અને સક્ષમ કાનૂની સહાય અંગે સમજ આપી હતી। खबरों के बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। नर्मदा जिला के तिलकवाड़ा तालुका के देवलिया और नसवाड़ी को जोड़ती हुई मेन सड़क पर आज अचानक ही एक पेड़ धराशायी हो गया। ये पेड़ काफ़ी बड़ा था जो अचानक ही धराशायी हो गया, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक जाम के दृश्य नजर आए। तकरीबन 3 घंटे तक इस पेड़ के धराशायी हो जाने की वजह से इस मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम देखने मिला और लोग काफ़ी परेशान भी हो गए। हालांकि इसके बाद नर्मदा पुलिस के अधिकारियों की ओर से इस पेड़ को हटवाकर ट्रैफिक की आवाजाही के लिए सड़क को साफ करवा दिया गया, जिसके बाद आवाजाही तेज़ हो सकी। वैसे नर्मदा पुलिस की इस सराहनीय कामगिरी को वहां के लोगों की ओर से काफ़ी सराहा गया।
इस साल कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद पर्यटक स्थलों पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने मिली, क्योंकि पिछले एक साल से लोग बाहर घूमने के लिए नहीं जा पाए थे। ऐसे में दीपावली के बड़े पर्व के चलते जब सरकार की ओर से इजाज़त दे दी गई, तब काफ़ी लोग बड़ी तादाद में पर्यटक स्थलों पर घूमने पहुंचे, जिसके चलते जूनागढ़ के गिरनार, रोपवे, सक्करबाग, भवनाथ और कीर नेशनल पार्क में भी लोग बड़ी तादाद में दिवाली के पर्व पर दिखाई दिए। सभी लोग एक साल के बाद कोरोना के बाद आखिरकार घूमने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में जूनागढ़ में लोगों की बड़ी तादाद इस बड़े पर्व के दौरान देखने मिली। छठ पूजा हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है, जिसे बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी धामधूम से मनाया जाता है। हालांकि पिछले साल तो कोरोना के चलते किसी भी त्यौहार को मनाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन इस साल सरकार की ओर से धीरे धीरे कोरोना के कम होते आंकड़ों को देखकर हर पर्व को मनाने की इजाज़त दी जा रही है। छठ पर्व 4 दिन का होता है और उसी के चलते वडोदरा शहर में बसने वाले बिहार और यूपी के परिवारों की ओर से भी शहर के हरनी तालाब पर छठ पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें विधिवत तरीके से व्रतियों की ओर से पूजा अर्चना की गई। आदिदेव नमस्तुभ्यम दिवाकरः प्रभाकरो नमस्तुभ्यम दयानिधे। ये तेजोमय भगवान भास्कर का जो सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से जाना वाला छठ पर्व, जो पहले तो बिहार में ही केवल किया जाता था, लेकिन आज पूरा विश्व जो है इस व्रत के नाम से प्रख्यात जो है सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से सभी लोग जान चुके हैं। और यह व्रत जो है 4 दिन का व्रत कहलाता है। पहले दिन जैसे कि चौथी तिथि को नहा खा से प्रारंभ होता है। अगले दिन खरना, मतलब कि गुड़ और चावल का खीर बना करके उससे जो है यहाँ पर जो व्रती होते हैं वो शाम के समय में खीर और रोटी जो है खा करके भगवान को भोग लगा करके वो ग्रहण करती है, और उसके बाद में 36 घंटा तक कुछ भी पानी वगैरह नहीं पीती है। और इस प्रकार से जो भी लोग इस व्रत को करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा पुरान काल से, वैदिक काल से इसका मान्यता है। पूजा की सभी देशवासियों को, सभी बिहारियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छठ पूजा हम लोग सब अपने प्रयास से सारे बिहारी हम लोग मिलके पूजा करते हैं। ये हमारे जीएस जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर नारायण महतो जी, और ये हमारे AK मिश्रा जी, हम लोग सब मिलके सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से छठ पूजा की प्रारंभ करते हैं। छठ पूजा अगले साल हम लोग छठ पूजा नहीं कर पाए थे, क्योंकि महामारी कोरोना के वजह से हमारे बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई। उसके लिए हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, और अभी धीरे धीरे उसकी समस्या छटती जा रही है। अभी हम लोगों को 400 आदमी का परमिशन मिला है, उसी हिसाब से उस परमिशन को ध्यान में, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पूजा कर रहे हैं। छठ महापर्व की जो मान्यता है, सही कहना तो बहुत मुश्किल है, जो मान्यता है उसके हिसाब से द्रौपदी ने छठ पूजा करना शुरू किया था। उनके पति के लिए, उनके बच्चों के रक्षा के लिए उन्होंने छठ पूजा शुरू किया था। षष्ठी माता के नाम से हम छठ पूजा करते हैं। षष्ठी माता माँ कात्यायनी का रूप है। और छठ बच्चों की जो छठ के बाद, जन्म के बाद छठी की पूजा होती है, वो भी षष्ठी माता की ही पूजा होती है। वो सब बच्चों को स्वस्थ रखते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, सब बच्चे दीर्घायु होते हैं, उसके लिए षष्ठी माता की पूजा की जाती है। भरूच के पालेज निकट नए शैक्षिक सत्र से मोटा मियाँ चिश्ती शैक्षिक सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के समन्वय से अच्छी क्वालिटी का शिक्षण दिया जाएगा।
भरूच जिला के पालेज निकट 2022 के नए शैक्षिक सत्र से HSMC एजुकेशनल कैंपस में अंग्रेजी मीडियम के CBSE बोर्ड की पहली संस्था मोटा मियां चिश्ती शैक्षिक संकुल की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के शिक्षणविदों का समन्वय होगा और इन शिक्षणविदों के समन्वय से अच्छी शिक्षा दी जाएगी, जिसमें बड़े अभ्यासक्रमों को भी शामिल किया गया है और इस मौके पर वहां के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही मोटा मियां मांगरोल की ऐतिहासिक गादी के वर्तमान अधिकृत गादीपति भी इस मौके पर उपस्थित रहे। उनकी ओर से कैंपस की मुलाकात लेकर सभी के साथ बातचीत की गई। मोटा मियां चिश्ती एजुकेशन कैंपस એટલે HSMC શૈક્ષણિક સંકુલનો આરંભ શૈક્ષણિક સત્ર 22થી કરવામાં આવશે। અહીંયા શિક્ષણની જે પ્રક્રિયા છે એ ઘટકા સાથે ખૂબ ઘનિષ્ઠ જોડાયેલી છે, માટે અમારું અંગત માનવું છે કે શિક્ષણનો ઉદ્દેશ એ માત્ર લખવું અને વાંચવું નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીમાં સમાનતા, સજાગતા અને યથાર્થતા જેવા મૂલ્યોનું સિંચન થાય ત્યારે શિક્ષણનો વાસ્તવિક અર્થ સાર્થક થાય। એ ચિંતાએ ખૂબ સરસ મજાની વાત કરી છે કે એજ્યુકેશન ઇઝ બેસિકલી હેલ્પ અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ લાઈફ ઇઝ ઓલ અબાઉટ। જીવનનો અર્થ અને જીવનનો મર્મ સમજવામાં શિક્ષણ સૌભાગી બને ત્યારે ખરેખર શિક્ષણનો સાચો અર્થ સાર્થક થઈ શકે એમ છે। અહીંયા વિદ્યાર્થીઓને વૈશ્વિક સ્તરનું શિક્ષણ તેમજ તેનો અનુભવ મળી શકે એ માટે અમે પ્રયત્નશીલ છીએ। આ તબક્કે તમામના સહકાર, સદભાવ અને શુભેચ્છા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर के हरनी तालाब पर बिहारी और यूपी परिवारों की ओर से मनाया गया छठ पूजा का पर्व। व्रतियों की ओर से विधि विधान से की गई छठ की पूजा अर्चना। नए साल के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की ओर से स्नेह मिलन समारोह किया गया आयोजित। शहर के सभी अग्रणी और पदाधिकारी रहे समारोह में उपस्थित। कल 222वीं जलाराम जयंती। जलाराम जयंती के मौके पर शहर के जलाराम मंदिर पर तैयारियां हुई तेज। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।